red rose. My hobbies are cooking, gardening, listening to music, watching TV, so on. My favorite place is Goa. Dream places my dream places are Maldives and Leh Ladakh. Yeah. Hello everyone. How are you all? I'm also fine. There are four members in my family. Firstly, my father's name is Mr. Pramod Bajaj. Secondly, my mother's name is Rashmi Patel. Thirdly, my sister's name is Rupali Patel. And lastly, my name is Nikhil Patel. My hobbies are listening music, playing cricket, swimming, and so on. I am very fast learner. I am 14 years old. My favorite bike is Zava. My favorite car is Bugatti. My favorite car are Bugatti and SVG Lamborghini. SVG Sedan. My dream place is Rus. My my favorite place is Ukraine. My favorite flower is black rose. My favorite color is black and white. There, thank you. Good evening, Adrian. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? I am also fine. My name, first of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Vinay Patel and I am studying in class 9. My blood group is O positive and my sun sign is Taurus. And in my life, I wanted to be a doctor. And my favorite flower is black rose. And my favorite car is Bugatti. And in my family, there are three members. First of all, my father. Her name is Mr. Dharmen Patel. His name is Mr. Dharmen Patel. And secondly, my mother. Her name is Mrs. Preeti Patel. And she is housewife. And I have currently joined the Jai spoken English classes to improve my English and to say the English fluent. Thank you. That's all. Hello everyone. Hello. Good evening. Good evening. How are you? I am fine, thank you. And you? I am also fine. My name is Kajal Gupta. I am 22. My zodiac sign is Cancer. My blood group is A positive. My favorite place is Dubai. My dream place is Vaishno Devi. My hobbies are singing, dancing, listening to music, and fashion designing. My favorite flower is red rose. My my favorite colors are black, blue, and red. My favorite there are four members in my family. First one, my father. His name is Ashok Gupta. Uh, he is a businessman. His sun sign is Aquarius. Uh, his blood group is B positive. Second one, my mother. Her name is Meena. Her name is Meena Gupta. She is a housewife. Her sun sign is Leo.
is third one, my brother. His name Satyam Gupta. His hobbies are watching TV, watching mobile. There. Hello everyone. Hello. How are you all? I'm fine. Thank you. I'm also fine. First of all, thank you for giving me this golden opportunity to introduce myself in front of you. It's my pleasure. My name is Kashyap Gupta. I am 17. I completed my schooling from Samdariya Public School. Uh, I have just uh, took admission in Shriram College with BCom Computer Application. There are four members in my family. First of all, my father's name is Mr. Shiv Kumar Gupta. He is a businessman, and his sunshine is Aris. Second one, my mother. Her name is Mrs. Mamta Gupta. She is housewife as well as she owns a boutique. Her sunshine is Leo. Third one, my brother. His name is Krish Gupta. His बोलने दोगे? His sunshine is Jambi. Fourth one, me only, and my sunshine is Jambi. There. नहीं वो तीन चीजें निकलने वाला था ना इसलिए लोग तीन चीजें थोड़ी ना पहले Hello guys, Hello. how are you? I'm fine. Thank you. And you? Grateful? Feeling grateful. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. It's my pleasure. Myself, Ayush Tiwari. I am 17. My blood group is O positive, and my zodiac sign is Aries. I am basically from Katni, but currently I live in Jabalpur. I have completed my schooling from Kids Care High Secondary School, Katni, and currently I am pursuing Jhasa spoken English classes. If we talking about my hobbies are listening music, playing games, and so on. And my favorite color is black. My favorite flower is black rose. My favorite dream place is Ladakh, and I want to definitely go there one day. That's all. Hello everyone. Hello. How are you all? I'm fine. Thank you. I'm also fine. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. It's my pleasure. My name is Krish Gupta. I am 14. My zodiac sign is Gemini. My zodiac sign is Gemini. My hobbies are playing cricket and gaming. And my favorite color is red and black. There are four members in my family. In English, I am from Mother Teresa Nagar, and I am in 10th standard. And my school name is Sundari Public School. There are four members in my family. First of all, my father name is Shiv Kumar Gupta. He is businessman. Second one is my mother. She is a housewife. Third one is me and my sister are two siblings. My sister name is Pasha Gupta. She is yeah. She is studying in Sri Ram Group of Institute. And my short-term goal is to pass 10th class with a good percentage, and my long-term goal is
to help everyone and increase their happiness. And my favorite place is Dubai. And my favorite and my dream place is Kedarnath and all four dhams and and the whole country. Dream place है भाई, dream है अपनी. And definitely one day I will go. That's all about me. Let's go. Hello everyone. Hello. How are you all? I'm fine. I'm also fine. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. It's my pleasure. My name is Akshat Patel. I am from class 4D. Speak up, please. I am from class 4D. My school name is Joy Senior Secondary School. There are 5 members in my family. My zodiac sign is Cancer. My hobbies are playing cricket, listening music, song. आज जल्दी हो अच्छा आज सब लोग तुम इधर आ जाओ ना नहीं ठीक है यहाँ पे ये एक लोग हो गया और यहाँ 4 हो गए तो यहाँ 1 इस तरफ आ जाओ या तुम आओ तुम इधर आ जाओ बेटा तुम दीदी की जगह आओ दीदी को मिल जाए अरे वाह ये किसी ने कर दिया था इसका फाइल बच्चों what was the last incentive My last incentive sentence was the process is always right. We don't use your do not use your head. अच्छा वो एक्स्ट्रा लिखा था तो तुम यूज कर Everything is fine. The fire is clear. Everything is fine. Yes, sir. Which question? Who answered Answer. how is it going on? Sir, the fire is good. हाउ इज गोइंग ऑन द क्लासरूम में पावर इज कट Sir, fire is good at second last. सेकंड लास्ट अच्छा उसके साथ क्या ये बता दो See, द पावर इज कट यस और हाउ इज गोइंग ऑन के साथ क्या दिया ही नहीं होगा बोल रहे दिया है box is always right. हाँ द बॉस इज ऑलवेज राइट दिया बच्चों एक मजेदार बात बताते तो 2 मजेदार बात बताते एक तो पहली मजेदार बात ये है कि ये जो इंट्रो है कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा ठीक है
दूसरी मजेदार बात, तुम्हारी जो पहली स्पीच होगी वो इसी चैप्टर में है जो बी चैप्टर का मैं बोला। तो अब आपके पास कुछ दिन है, अपने इंट्रो को जितना बढ़ाने का कोशिश प्रयास कर सकते हो। जैसे तुम्हें बहुत जरूरत नहीं है तो काफी अच्छा कॉन्फिडेंस से बोलने लगे। एक चीज अभी हमने ऊपर देखी, तुम्हारी एक पॉजिटिव चीज देखी कि यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारे चेहरे पे वो डर सा नहीं था, हेजिटेशन भी नहीं था, काफी कॉन्फिडेंट था। तो जिस तरह से तुमने इसमें इम्प्रूवमेंट किया वैसे ही तुम बाकी चीजों में भी कर सकते हो। तुमने ध्यान दिया जब वो आके यहाँ खड़ी होती है तो उनका अलग दिखता है, ध्यान दिया ना? लेकिन अब तुम्हारे उसमें वो नहीं दिखता है, घबराहट चेहरे पे नहीं दिखती है, बॉडी लैंग्वेज में भी घबराहट बॉडी लैंग्वेज से समझ में आती है, व्यक्ति कैसे खड़ा है, कहाँ देख रहा है। कुछ बच्चे आते हैं एक ही तरफ देखते रहते हैं, किसी एक को देख के पूरा बोल देते हैं, जबकि 1 2 3 4 5 लोग यहाँ बैठे, 1 2 3 4 लोग यहाँ बैठे, तो वो एक तरफ देख के पूरा बोलता है। तो ये नेगेटिव है। वैसे इस पर हम और चर्चा करेंगे स्पीच की तैयारी कराने से पहले। एक एक चीज पे बारीकी से 2 दिन तक हम आपको जल्दी एक्चुअली उसके लिए ऐसा कोई डेट, जैसे सरकारी डेट आती ना बेटा, वैसी डेट तो नहीं है, हम कुछ चीजें और दे देते हैं बी चैप्टर में, कुछ सेंटेंस और दे दें ताकि तुम उसको प्रयोग कर सको, उसके बाद देते। तो इट इज सेड नाम का इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया है क्या तुमको? हमने जो बोला बोल के किसी को समझ में आया है जो हमने बोला? ये समझ में आया, फट से बोल देने चाहिए जो भी है। अब ये भारी गलत है, लेकिन ये बोल हाँ, तो उसको एक को लेकर सही कर, लेकिन पहले स्पेलिंग देख लो तो हो सकता है उससे क्लियर हो जाए। हाँ, ये अपन 2 राउंड खेलते हैं। पहला राउंड तो आसान है, रेडीमेड तुम रख सकते हो जो तुम्हारे पास मौजूद है, बता सकते हो। कौन स्टार्टिंग करेगा? कहा जाता है ये तो तुमने मॉलिक बना लिया, गुड। इसको अपन सेकेंड राउंड में खेलेंगे। It is said that haste is waste. हाँ। यह कहा जाता है कि सर haste is waste की कोई बात नहीं, जो लिखा है उसमें से बोल दो, दूसरा बोल दो, है ना? It is said that counting and we cannot succeed in life. ये कहा गया है कि गहरा गहरा से पहला अपनी जिंदगी खत्म नहीं। ये सबसे बन जाएगा, उठाओ रख दो, जो पसंद हो उठाओ रख दो। सर मैं हाँ, दूसरा बना दो। It is said that truth is bitter. ये कहा जाता है कि सच कड़वा होता It is said that the boss is always right. ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा मिस्टेक It is said that bygones be
empty Bibles. ऐसा कहा जाता है कि रात्रि अब एक मजेदार बात किसी ने नोटिस की, हमने वहाँ तीसरा शब्द लिखा ही नहीं, लेकिन किसी एक ने लगाया तो बाकी भी लगाने लगे अपने आप। गलत नहीं है, दोनों सही है। It is sad and don't know what is causing harm. ऐसा कहा जाता है राम की बचिया के राम की। जब तक एक दो लोग व्यस्त हैं तब तक तुम बनाते जा सकते, फिर अपन दूसरा राउंड शुरू करें। हाँ, It is said that empty mind is always suspicious. ठीक है, ये ऐसा कहा जाता है कि चोर की गाड़ी में It is sad. don't नहीं लाइट जो फाइट ऐसा कहा जाता है चोर चोर को सेव है। It is said that when you stop to study, अब ये जो उच्चारण में बेटा तुमसे गलती हुई ना, अच्छा किया तुमने ये रखा। अब कोई ना कोई सुधारेगा तो आगे से तुम ये गलती नहीं। कौन सुधारेगा पहले इसका? हाँ, वही तो हम देखना चाह रहे थे कि कोई सुन रहा है कि नहीं। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं ऐसा नहीं, ये तुम लोग रॉन्ग टाइप है, हमें तो आया पूरा समझ में। ये भी एक्सक्यूज है। भारत के लोग सफल क्यों नहीं है, अमेरिका की तरफ फर्स्ट क्यों नहीं है पहले नंबर पे? क्योंकि हम लोग बहाने बहुत बनाते हैं। नहीं, अभी हमने बोला ना, जब तक आप उसका वाक्य नहीं सिखाएंगे तब तक कोई नहीं बना सकता। नहीं नहीं, पूरा मत बोलो, जो उसने गलत बोला उसको बस सही। तुमने ये अडॉप्ट कर लिया ना अमेरिकन पैटर्न, तुमने बहुत अच्छा किया। आगे तुम्हें बिल्कुल किसी भी शब्द में प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा खुद का अनुभव है। नहीं, पहले अभी उसने मदद की, अब वो सही बोलेगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बेटा वो भी तो आसान नहीं है, वो प्रैक्टिस से आता है, उसके लिए थोड़ा सा एक्चुअली उसने कॉपी किया है। जब हमने लिखवाया था तो हमने उसकी एक एक चीज बताई थी कि ये क्या है। अरे हाँ, एक चीज और याद आई। नहीं नहीं, एक चीज हमें बेटा और याद आई, हमने इसमें होमवर्क दिया था जो तुम्हारे वैसे किसी ने नहीं। अब समझ में आया। बाकी इडियम जब भी हम लिखवाते हैं तो उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सब लिखवा देते हैं ना। हमने इसमें रोक लिया, हमने लगा कल तुम में से कोई लेकर आएगा तब हम लेंगे, और कोई लेकर नहीं आया आज तक। तो अब ये कंफ्यूजन सबके साथ रहेगा, चलता रहेगा बेटा, कभी क्लियर नहीं, हम भी नहीं देंगे। तुम भी लाओगे तभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उसमें तो क्रिया है, तो जब वो क्रिया यहाँ पे लिख के क्लियर हो जाएंगे तब तुम लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। अब It is said that all that glitter is sorry. बेटा आज तक हमने तुमसे बोला नहीं लिखने के लिए, लेकिन आज के बाद जब हम ये जैसे एक छोटा सा सेंटेंस तुम इसको लिखो, आज लिखना शुरू करो, कहीं पे भी लिखो, उससे मतलब नहीं तो दीदी मदद कर देंगी कहाँ है। बिना लिखे वो सही नहीं होगा। said that so yes. ये कहा जाता है तुम्हारे दिन पूरे हो। ये कहा जाता है
Geography has come. It is said, it is said our little knowledge is priceless. ऐसा कहा जाता है Can you repeat the English sentence? It is said our little knowledge is priceless. Our little knowledge is priceless. Our little knowledge is priceless. A little knowledge is dangerous. A little knowledge is dangerous. Little knowledge is dangerous. A little knowledge is dangerous. A little knowledge is dangerous. A little knowledge is dangerous. Last word repeat करना last. Dangerous. 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 Speaker. तुम लोग उसकी मदद करने का प्रयास नहीं कर तब तक घुमाएंगे Dangerous. Dangerous. तुमने एक अच्छा प्रयास इन्होंने नहीं किया आपने परमार्थ की दृष्टि से नहीं किया स्वार्थ की दृष्टि से Dangerous. ये परमार्थ है Dangerous. Dangerous. तुम हमेशा अच्छे से बोलते हो और इतने किस में बोलते हो कि सुनने वाले को सही सुना ये स्वार्थ है Dangerous. It is said our little knowledge is dangerous. Dangerous. Our little. बच्चे कितने प्यार से बोल रहा है बेटा It बोलना ही is. बहुत प्यार से Come again, please. कितने अच्छे से बोल रहा है ठीक है उसने जब आप बाहर गए थे फोन करने अरे हाँ 10 रुपए दे दिए तो ये इनसे बोल रहा था जोर से स्वीकार हम लोग नहीं बेटा प्लीज मैं रख लिया उसको ऐसे उसको हाँ उसको कभी कभी हो गया ओके चलो ठीक है थोड़ा काफी शांति चलो आगे बढ़ते हैं। It is said that the bar is full. It is said by any grateful person that don't worry, be happy. ऐसा कहा जाता है किसी महान व्यक्ति के द्वारा कि चिंता मत करो, खुश रहो। ऐसा कि किसी महान व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा गया है किसी महान व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा गया है कि चिंता मत करो, खुश रहो। अब चीजों में हाथ उठा रहा है मैं जरा मुझसे पूछूं अब दूसरा मौलिक राउंड शुरू करें कि ये कॉपी पेस्ट वाला चलेगा मौलिक राउंड जिसमें आपको अपने मन से एक सेंटेंस अभी तक आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सोच सकता तो आपको नहीं करना है आपको मन से जैसे ये भी थोड़ा सा कॉपी पेस्ट है लेकिन फिर भी ये मौलिक नहीं है तुमने जो पहले सेंटेंस बनाया था वो फिर से बोल दो It is right there. Girls is dangerous.
कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश खतरनाक है। ये नॉलेज ये कहीं लिखा नहीं है ना हमने, हम एक और बना कर दिखाते हैं कॉमन। हम ऐसा चाहो तो इट इज said the Taj Mahal is the symbol of love. ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल इसका symbol है। प्रेम का प्रतीक मतलब एक व्यक्ति अपनी बीवी से कितना प्रेम कर सकता है, जिसको देखने के लिए फॉरेनर जब भी इंडिया में आते हैं तो वो और कहीं जाए या न जाए ताजमहल देखते रहते हैं। लेकिन रेडीमेड नहीं। It is said that by Chaucer, English is easy. English is so easy. ऐसा Chaucer के द्वारा कहा गया है कि अंग्रेजी बहुत पसंद है। और मजेदार होता है तुमने कोई बताएगा इसने किस चैप्टर में सेंटेंस बना, इसको छोड़ दें जो आखिरी में है। ये हम ये बताना चाहते हैं बी प्रेजेंट में बी प्रेजेंट It is said that we should practice till we are succeed. ऐसा कहा गया है कि हमें जब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम सफल नहीं होते। सफल नहीं हो जाते हैं तो फिर इसके लिए एक शब्द कोई बता सकता है? So get success. Get success. नहीं हम लोग वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, इसने हिंदी में कहा जब तक हम सफल नहीं हो जाते, और अंग्रेजी सेंटेंस में ऐसा कहीं भी ऐसा लग रहा है ऐसा। तो ऐसा एक शब्द बस बदलना पड़ेगा जिससे पूरा सेंटेंस सही हो। किसी को पता हो तो बताओ, नहीं तो It is said that we should practice till we are succeed. Sir, still we don't get succeed. हाँ एक तो ये नॉट लगा के लेकिन उसकी जगह यहाँ आ गया, सही जवाब यहाँ आ गया, केवल ये लगेगा एक शब्द अटेल, बस किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि अटेल का मतलब ही होता है जब तक अपने आप में मतलब। लेकिन उसका दूसरा सेंटेंस गलत है, वो बी लगा रहा है उसमें, तो बी चैप्टर में तो नहीं। इसमें नॉट घुसा हुआ है, सफाई भाषा में बोलते हैं सिंपल ताकि समझ में नॉट घुसा हुआ है। अच्छा बेटा हमें ये नहीं पता था कि एंटिल क्या है, तो हमने लिखा नहीं कि तुम ढूंढ के शेयर कर। तुम्हारा नाम जुड़ गया ना? जिसने बाहर क्लास में तो तुमने नीचे से मिटा दिया, तो तुमने ध्यान से ऊपर लिख दिया हमने ताकि लोग ज़्यादा समय चेक जरूर कर लेना। अभी अपना गाँव नहीं चल रहा है, जिसको मन में आता जा रहा है वो बना रहा है। It is said that work hard and definitely you will get success one day.
ये सेंटेंस करना है, फीचर से वहाँ उसको टेंस के लगे। ऐसा कहा जाता है कड़ी मेहनत करो और एक दिन जरूर सफलता प्राप्त तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। जो लोग अंग्रेजी से थोड़ा सा पहले से जानकार हैं उनके बड़े सेंटेंस का हमें लाभ उठाना चाहिए, और जो कम जानकार है वो छोटा सा सेंटेंस बनाए। बिल्कुल आसपास हमने जो सेंटेंस बनाया था वो बड़ा सेंटेंस नहीं, ताजमहल इज 10 से होगा और 5 सेंटेंस, ये बहुत छोटा सा सेंटेंस बना के बता रहे हैं, लेकिन वो सामान्य कॉमन सेंस का है, सामान्य ज्ञान का किसी हो सकता है उससे तुम्हें आइडिया नहीं है। It is said Jaipur is pink city। आ गया था तुम्हारे दिमाग से। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर गुलाबी शहर। हम वहाँ होकर आए हैं और उसका कारण भी समझ में आया। वहाँ जब तुम मेन मार्केट में जाओ तो रोड के दोनों तरफ जो दुकानें बनी हैं हवा महल की बाजू से, वो सब ऐसे पत्थर से बनाई गई हैं जो पिंक पिंक, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक नजरें जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ ज्यादा पाया जाता है उस एरिया में, वो वाला पत्थर आसानी से बनता है, तो उसको लगा के भवन बनाया, तो वो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी से पेंट नहीं है उसका, पत्थर का कलर ही पेंट। So can I make one? Yes, you can make. It is said that believe in yourself before believing to others. ऐसा तो की जरूरत नहीं। before believing others. It is ऐसा कहा जाता है कि पहले खुद पे भरोसा करो, दूसरों पे भरोसा करने से। ऐसा कहा जाता है दूसरों पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करो। जैसे हम बोल रहे हैं अंग्रेजी में मैक्सिमम अनुवाद पीछे से आगे की दिशा में। अगला सेंटेंस अभी कुछ लिखेंगे पीछे से आगे की तरफ। सुनाई देती है। Speak up, please. I could not listen any. It is said that the sea big ये कहा जाता है कि बड़े समुद्र नकल के लिए थोड़ी सी नकल की जरूरत पड़ती है। हाँ वो समझ गया। एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस हम ऐसा नहीं ध्यान रखते। It is said जबलपुर is मार्बल सिटी। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे कि जब हमने जयपुर को बताया था तो यहाँ के जयपुर के लोग किसी के दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो बना लेगा, लेकिन इंतजार करते करते देखा किसी का जाने की तरफ गई नहीं तो हमें नहीं बना। It is said is come again please. It is said the Mathemati is very bad. सर वो थोड़ा सा ऐसा हो गया बनाते हैं सर पास। It is said that India has a static location in the world map. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की स्टैटिक पोजीशन वर्ल्ड मैप में है।
अब वैसे तो बोलने से में आ लेकिन अब इसको देख लेंगे गूगल में कोई ना तुलसी गूगल में हिंदी It is that Kashmir is the heaven of India. कहा जाता है कश्मीर इंडिया की जन्नत है। हमें एक सेंटेंस बनाना है, इससे अगर इन्होंने ध्यान से सुना तो इनको मदद मिल जाएगी अपना सेंटेंस करने में। जानबूझ के बना रहे हैं, सबसे बुलवा देंगे। It is said India was golden girl. ऐसा कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया। हाँ, अब हमने कौन से चेक करेंगे? चेक कर देंगे बी जब पास में आता है तो क्या चीज नहीं तुम लोग गड़बड़ कर रहे थे एक्चुअली कुछ पुराने लोग आए नहीं है उन लोग को अच्छे से आगे पढ़ नहीं है तो तुम लोग गड़बड़ कर रहे। एक बार हम फिर कोशिश कर लेते हैं। मिस्टर बी जब पास में आते हैं तो किन किन लोगों में आते हैं? When Mr. B comes in past, what are the forms? It is said Amazon forest are the lungs of fire. ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न जंगल वर्ल्ड का दिल है। बिल्कुल सही है। ये कहीं एग्जाम वगैरह में आ सकता है, ध्यान रखना एक बार हमारे साथ बोल दीजिए। Amazon jungle is the lungs of the world. ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल दुनिया के फेफड़े पता है ना। पूरी दुनिया अभी हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं जिसके कारण जिंदा है उसका 70% अमेज़न। इतने घने जंगल है, इतने जंगली इतने पेड़ है वहाँ कि वो इतनी सारी ऑक्सीजन लेते हैं कि जो अभी अपन मर रहे हैं ना, गर्मी बढ़ती जा रही है, इस बार तापमान काफी पहुंच रही थी, भविष्यवाणी है अनुमान। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के अपन ऐसी तैसी पड़े जंगल के जंगल काट रहे हैं पौधे लगा नहीं है और कारखाने बढ़ाते जा रहे हैं, कारखानों से बहुत प्रदूषण तो हमारा पूरा वातावरण दिल्ली में पूरे से कोहरा जैसा देखता है ना, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्री, दिल्ली राजधानी है तो वहाँ फैक्ट्री बहुत है, बहुत चीजों का उत्पादन वहाँ होता है। हमारे मार्केट में जो बहुत सारी चीजें आती हैं वो दिल्ली से आती हैं, प्लास्टिक की चीजें बहुत सारी। It is said Delhi is a very pollution place. एडजेक्टिव है इसमें क्या है? इसलिए हमने बोला था कल सेंटेंस बनाते कि दोनों बोलो भैया, या तो एडजेक्टिव आएगा
तुम ऐसे सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि लास्टली आई विल टेक द रिज्यूम, ऐसा नहीं, दोनों बोलो, लास्टली आई विल टेक द रिज्यूम। तो किसी जगह केवल नाम फिट होगा, जैसे आई एम आशीष, तो आशीष क्या है, नाम इज द नेम ऑफ आई क्या है, एम क्या है, तो ये बता रही है कि ये जो बंदा है वो कौन है, क्यों होना बता रही है, आई एम यू आर काजिल। अब काजिल नाउन नहीं, तो सही बोलो। उसका सेंटेंस सही कौन सा वाला है, ये मैंने उसने सुधारा था, इसने बताया, वो लगाओ बेटा, नहीं सुनता, तुमने सुना, तुमने क्या बोला, एक शब्द बस बताना, अच्छे से बताओ। Polluted. It is said. It is said Delhi is very polluted place. City. ऐसा कहा जाता है दिल्ली बहुत ही प्रदूषित शहर है। और पोल्यूशन का मतलब हिंदी क्या उसका, प्रदूषण। क्या जबलपुर में इतना प्रदूषण है, दिल्ली में है, आगरा में है, आगरा में तुम लोग कभी जाओगे ना, आपको घर होगी, ताजमहल हमारी श्रीमती जी की यूपी की, लेकिन जो झांसी और वहां से आगरा पास में कभी जाना नहीं होता, शादी के बाद छत को चले गए, बाथरूम में जब नहा रहे थे तो आदत है अपनी पानी से थोड़ा सा कुल्ला लगे, शावर के पानी से जैसे कुल्लर के बाप में इतना कड़वा पानी, तो बाद में समझ में आया कि वो हर कमरे में होटल वाले इतनी बड़ी बोतल क्यों पानी की रखते जाते। आप लोग होटल से रुके होंगे, एक छोटी बोतल रहती है, ठीक है, एक जग रहता है, इतनी बड़ी बोतल वो हर रूम में, क्योंकि वहां का पानी जीप पे रखने लायक नहीं रहेगा। आगरा जो है यमुना के किनारे बसा हुआ, ताजमहल के लगते यमुना है। It is said Delhi is the heart of India. ऐसा कहा जाता है दिल्ली इंडिया का दिल, दिल्ली दिल वालों की, किसी पिक्चर में भी है, चांदनी पिक्चर में, चांदनी पिक्चर में दिल्ली इज द हार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत का दिल। It is said that Sri Lanka has betrayed the India. Sri Lanka Has betrayed the India. India किसका प्लान है? नहीं लगा। India has betrayed India. Betrayed India. ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका ने इंडिया को धोखा दिया। What should be the word for धोखा देना? धोखा देना should be What should be the pronunciation of this word? pronunciation of this word is बा में छोटी की मात्रा, टा में एक की मात्रा और रा की भी। Betray. What should be the second form of betray? Second form of betray should be betray.
Spelling. What should be the spelling? Spelling of betrayed should be B-E-T-R-A-Y. चेक करो सीधे ही लगता है फिर भी चेक कर लो अपने अगर गलत होगा तो फिर हटा के सही जब तक ये लोग चेक कर रहे तो हिंदी बोलो धोखा देना betray सेकंड फॉर्म बोलो betrayed वेरी गुड अब सेकंड फॉर्म चेक किया ईडी लग रहा है जैसे प्ले में सीधे ईडी लगता है वैसे इसमें भी सीधे ईडी लगता है बेटा एक बार बोलना पहले हिंदी बोलो फिर फर्स्ट फॉर्म फिर सेकंड पहले हिंदी बोलो धोखा देना betray 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 धोखा देना first form of the verb betray second form of the verb betray third form of the verb betray betray second form of the word betray and third form अब अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो उसको चेक कर भी बता के बोलो हाँ मैं चेक कर ही नहीं आ रहा है तो अधूरा सा लगेगा तो बोलना धोखा देना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज betray यस अब वो बात सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इससे ही तो betray है लगेगा ना बेटा तुम बिना है लगा सेंटेंस बोल रहे हो and third form of the verb is betray धोखा देना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड betray sorry धोखा देना first form of the verb is betray. The second form of the verb is betrayed. Third form of the verb is betrayed. धोखा देना the first form of verb is betray Okay. the second form of please speak up. The first form of the verb is betray, and second form of the verb is betrayed. The third form of the verb is betrayed. The first form of the verb is betray, and the second form of the verb is betray, and the third form of the verb is betrayed. The first form of the verb is betray, the second form of verb is betray, and the third form of the verb is betray. वो एक लड़का आता था ना अभी नहीं आता जिसके दिव्यांश वो लोग खूब चीटिंग करते थे एक्चुअली वो खुद भी बहुत चिल्ला है मालूम लड़का बदमाश है वो सब देखते हैं तो वो लोग भी उसको आड़े हाथ कर लेते धोखा देना the verb from the first form betray, the second form the betrayed, sorry इधर में तुमने सॉरी बोला हम तो इतनी पूरा सुन लेना चाह रहे थे फिर कम अगेन बोलती कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम इट डजंट मैटर धोखा देना the first form of the verb is betray and the second form of the verb is betray third form of the verb is betray धोखा देना the first form of the word is betray the second form of the word is betray the third form of the word is betray पीछे से मिलने के बाद अगर कोई इज़्ज़ात छोड़ रहा है तो दया आती है गुस्सा नहीं आती दया धोखा देना the first form of the verb is betray.
The second form of the verb is betrayed. The third form of the verb is betrayed. Speak up. Loka देना the first form of the verb is betray. वो ये गलत तरीका है लिखते हुए ना, उसको सुनना मिस कर देते हो। और ये रजिस्टर हम पिछले 27 सालों से भरते आ रहे हैं, सुन लें ध्यान से। क्या क्या लिखोगे बताओ ना, ऐसे तुम 900 पेज का रजिस्टर मंगाना पड़ेगा, मत लिखो, सुनो। The second form of verb is sorry. चलो कोई बात नहीं, डेली बोलेंगे सुन। The first form of the verb is betray. The second form of the verb betrayed. Sorry. अब हम सुन, तुम लोग तो अच्छे सुनो। The first form is the verb sorry. कोई बात नहीं, अब इसको सुन लीजिए अपने को। The first form of the verb is betray. The second form of verb sorry. The verb is mistake. कोई बात नहीं, डेली बोलेंगे। The first form of the verb betray. Sorry. कोई बात नहीं, बड़ी डेली बोलेंगे। The first form is verb sorry. कोई बात नहीं, अब सर बोलेंगे। The first form of the verb is betray. The second form of the verb is betrayed. The third form of the verb is betrayed. So there you are. The first form of the verb is betrayed. The second form of the verb is betrayed. The third form of the verb is betrayed. The first form is sorry. The first form of the verb is betrayed. The second form of the verb is betrayed. The third form of the verb is betrayed. आवाज में थोड़ा तेजी आ रही है, इससे और there Yes, should I erase the verb? क्या मैं वर्ब निकाल दूं? इसके साथ कर दीजिए। तुम्हारे मुझसे बच्चों इंग्लिश की मात्रा बढ़ाने के लिए, अरे आपको 20 रुपए लगती है, हाँ आगे 20 रोज, ठीक है, आप अपना हिसाब देखते रहिए।
बच्चों हम जो पूछने जा रहे हैं, पहले थोड़ा थोड़ा पूछा था, अब उसको बढ़ा देते हैं तो तुम्हारे मुंह से इंग्लिश ज्यादा मात्रा में निकलेगी। और जो अभी अपन ने इन 3 बच्चों में देखा 1 2 3, तो वो नहीं होगा। मैंने ये चैप्टर तुम लोग को दिया नहीं, लेकिन अब तुम्हारे मुंह से इंग्लिश निकलवाने के लिए हम पूछ लेते हैं, सही होगा या गलत होगा उससे कोई बात नहीं, ठीक है। Which chapter is this sentence related? This chapter is related to Yes. Yeah. लेकिन पूरे जवाब This chapter is related to chapter this sentence is related to nature. हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, अब तुम चैप्टर कैसे निकालोगे अभी हम थोड़ा सा और बताते हैं। अगले सवाल से क्लियर होगा। What is the subject of this sentence? subject of this sentence is subject। इसमें हम तुम लोग को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि जब तुम लोग आए क्लास में तो तुम्हारे मुंह से सबसे ज्यादा आई और ये निकलता, फिर धीरे धीरे अलग अलग नाम निकलने लगे। फिर कल अपन ने नॉन लिविंग सब्जेक्ट भी खेला, तो तुमने काफी सेंटेंस बनाए। तो यहाँ पे ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, ये व्यक्ति नहीं है, वस्तु है, लेकिन सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। What is the helping verb here? the helping verb is me. तो ये हम चीज चेक करना चाह रहे थे। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद जो भी लेटर होता है वो बता देता है कि अगर यहाँ में नहीं होता और कैन होता तो फिर helping verb कैन, मतलब ये कैन शिफ्टेड हो जाए। ये दोनों एक ही से। ये छोटा सा बच्चा है, पहले इसने चैप्टर ना सीखा, लेकिन बचपन से मैडम में आई गवाह, मैडम में आई कामिंग, ये बचपन से करते आ रहे हैं, तो वही हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज द मेन वर्ब हियर? The main verb is injured. यहाँ मुख्य क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया injured. And what is its companion? Its companion is objective. इसको अभी तक बच्चे गलत होता है। बेसिक ग्रामर का वीडियो फिर से देख लेना, कुछ बच्चे गलत अच्छा कुछ जो गलत बोल रहे अच्छा, तुम लोग ये इससे थोड़ा सा बाहर निकलो, ये मानसिकता गलती किसने की अपन उसको ढूंढने लग जाए। इस क्लास में इस मानसिकता में आओ कि गलती हुई है तो उसको सुधारना है। अब दूसरे की फटक से दूसरे को वो एक जो दोहा है ना वो बिल्कुल सही पड़ेगा। बुरा जो देखन में चला, अपन सब बुरा देखने निकल पड़ा, बुरा न मिलिया हो जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा। इसका हिंदी बहुत अच्छा है, मजेदार। एक मछली का तालाब। सही जवाब पढ़िए। अब इसमें कहीं मछली नहीं है बड़े वाले, लेकिन हमारे वहां पर बच्चों फिर से सुन लो, ये है रियल इंग्लिश। ये अभी तक जो अनुवाद करते आ रहे थे, जो लेटर देखा वो गलत नहीं। इसमें ना कहीं तालाब है
नमस्ते, लेकिन भाव वही है। अब बच्चे तुम लोगों ने इसमें वर्ब बता दी ईट, तो हम तुम लोगों से एनीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ इंडियन कॉमन वर्ड है देखो नहीं इससे मत देखो। हाँ वही है वही है, इसमें मत देखो, इसमें तो कुछ और है, मतलब हमारा हिंदी में। चलो व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर घायल करना? Verb for घायल करना should be injure. What should be the second form of injure? The second form of injure should be injured. And what should be the third form of injure? The third form of injure should be injured. अब एक और मजेदार बात, अगर दिल में समा गई तो आगे काम में आएगी, नहीं तो डरा देगी। बच्चों क्रिया का तीसरा रूप प्रायः एडजेक्टिव के रूप में काम कैसे होता है? चलो अपन देखते हैं कैसे करते हैं। What is injured? Injured is an adjective. कुछ लोगों ने आज के साथ करेंगे, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। What should be the meaning of injured? The meaning of injured should be घायल. अब इसको कुछ भी चैप्टर में तो पढ़ते सीखेंगे। एक शब्द और लिखेंगे, उसके बाद हम भगवान से पढ़ेंगे ताकि पहले सारे पिक्चर के सामने आए और किसी को उच्चारण में लिख कर ना हो। What is companion? Companion is a noun. And what should be the meaning of companion? The meaning of companion should be शांति. अक्सर ऐसा सुना होगा, उसकी कंपनी अच्छी, उसके कंपेनियन अच्छे, इसलिए वो इंग्लिश बोलने लगता है, अच्छे लोगों के साथ में रहता है। तो तुम अपने फ्रेंड अगर बनाओ, जानबूझ के इंग्लिश मीडियम की लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलती हैं, भले वो मॉडर्न हो, लेकिन उनसे फ्रेंडशिप करो या व्हाट्सएप में कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो इंग्लिश में सवाल जवाब लड़ाई करता, तो उससे फायदा मिले। अब देखो बच्चों, अगर हम अक्षर से अनुवाद करते तो क्या निकल रहा है? यहाँ पे एक शब्द और लिखवाना जरूरी है। What is rotten? Rotten is an adjective. And what should be the meaning of rotten? The meaning of rotten should be sadness. अब बता देते बच्चों, पहले तो हम नहीं बता पाते थे, अब आज हम बोल देते हैं। कुछ प्रश्न हम शुरू में पूछते हैं तब समझ गए, और कुछ इस बोलने कितना गंदा यस, जब मिल गया है तो उसका नाम लो ना, रोशन करो उसका नाम है, नाम करेगा रोशन मेरे घर का तो जब हम बी चैप्टर में पूछे तो बी चैप्टर में जवाब देना, जब शुरू में पूछे तो शुरू में जवाब देना, ठीक है। What should be the meaning of rotten? The meaning of rotten should be सड़ा. अब देखो इसका अनुवाद कैसे निकलना है। एक सड़ा हुआ सेव अपने साथ में रखे बाकी जो फल है, मान लो उसके साथ केला रखा, पपीता रखा, अंगूर रखा, उनको भी घायल तो नहीं, लेकिन मुहावरा है, सड़ा देता है या सड़ा सकता है। भाई फल रखे उसमें एक सड़ा हुआ फल रख दो, एक दिन में सड़ जाएंगे ना, तो ये लेकिन हमारा बोला जाता है एक मछली। अब ये हमारे यहाँ का मुहावरा कैसे बना है तुम्हें भी मुहावरा का जन्म आज से 100-200 साल पढ़ाना,
हम बता नहीं सकते। A rodent apple may endure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। Just its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए हमने पहले सब लिख दिया था। नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर। A rotten apple may injure its companion. और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तुमने अमेरिकन स्टाइल में लगी। A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बेटा रुकना एक मिनट, एक बार मम्मा से बुलवाते हैं। A rotten apple may injure its companion. तो अब हम बोल फिर एक बार उनके पास दो मौके हैं। सबसे कहीं दूसरी जगह गलती हुई है, पूरा ध्यान से सुनना होगा। A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब आपके पास एक ही मौका था, एक और ये है। A rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। A rotten apple ये जो उच्चारण करती हूँ, ये हिंदी मीडियम वालों का उच्चारण है। हमें इसका डर लगा, इसलिए हमने आप ध्यान से देखिए। इंग्लिश मीडियम वाले का उच्चारण आप आजमा के देखिएगा। आपके मोहल्ले में बेटा तुम भी आजमा के देखिएगा। अगर दो बच्चे हैं छोटे, एक से पूछना एक और क्या होता है, अगर वो हिंदी मीडियम का होगा तो एक बार ऐसा बोलेगा पूरा आधार करके एप्पल, क्योंकि वो डबल पी देगी, उसको सिखाया भी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे से पूछना, वो बोलेगा A for apple, B for ball, C catch। हिंदी मीडियम वाला क्या? A for apple, B for ball, C for cat। वो बिल्कुल हिंदी मीडियम के अपने लय और ताल को मिला के पट से यहाँ कवर हो जाएगा। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, 3 बार चलता है। यहाँ करेंट लगा पर HMT। लेकिन ये सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है इसको होने में। ये भी प्रयास कर रहा है वो भी थोड़ा सा, और आज से उसने भी कर दिया, ये तो करने लगा। आपका बेटा ऑलरेडी वो उसी एक्साइटमेंट में बोलता है, और चूंकि वो छोटा है तो उसको वो लाज लोग शर्म जो होती है ना, जो आप में है, इनमें है, इनमें सबसे ज्यादा है। पता नहीं क्या जाए नहीं है, वो जब तक जाएगी तब तक आएगी। लोग लाज छोड़कर संतन संग बैठी मीरा के तो गिरधर गोपाल, ये गिरधर गोपाल को मान लो और लोग लाज छोड़ो। rotten apple may injure its companion. एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इस बात ये थोड़ा सा मैं तुम बताते रहना, टाइम लगते हो। My friend is smoking. He may injure its companion. मेरा दोस्त धूम्रपान करता है, और ये मैं और अपने अपने दोस्तों को भी ये लत लगवा। हमने तुम्हारा भाव समझ गए, थोड़ा कंडीशन। इनका दोस्त सबके साथ चुट्टा मारता है, अब धीरे धीरे बाकी को भी लत लग जाएगी। एक मछली My friend Mohammed Bin Zayed is an apologetic man.
I said, wrote an apple may endure its companion. मेरा फ्रेंड एक शराबी आदमी के साथ घूमता है। मैंने उससे कहा एक मक्खी शायद खराब बनना चाहिए। Have you written the idiom? Yes, sir. We have written the idiom. Should I erase? Yes, sir. You should erase. Have you written the verb? Yes, sir. We have written the verb. Should I erase? Yes, sir. You should erase. Have you written this adjective? Yes, sir. We have written the adjective. Should I erase? Yes, sir. You should erase. Have you written this noun? Yes, sir. We have written the noun. Should I erase? Yes, sir. You should erase. या तो ये ज्यादा उत्साह से बोल देते हैं बच्चे, तो आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती, या आप लोग बोलते नहीं हो। जैसे इसकी आवाज हमें आज तक कभी सुनाई नहीं दिया। Have you written the adjective? Yes, sir. We have written the adjective. Right. Yes, sir. You should erase. आप सबसे परिपक्व हैं क्लास में कि खेल खेल में बच्चों को ये सब समझ में थोड़ी आता है। हमने एक बना दिया, वो उसका पालन करने लगे और उनके मुंह से बारंबार निकलवा रहे हैं, हम अंग्रेजी हर पल लिखवा रहे हैं। लिखवा कम रहे हैं, बुलवा ज्यादा रहे। आपने इतने दिनों में ये चीज नोटिस की। अब इनका हेजिटेशन का कारण या इनका हेजिटेशन का कारण क्या है कि ये जिस पद्धति से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की उसमें लिखवाया इतना ज्यादा था, बुलवाया कोई तो एग्जाम में लिख दो तो मैं पास स्लाइड कुछ है। लेकिन इस क्लास हम बोलते भी हैं, इन लोगों को शायद याद होगा, हालांकि आज कोई पुराना कोई भी बंदा नहीं है, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। इस क्लास की प्रोसेस अच्छा तुम लोग हिंदी बोल, तुम लोग नहीं तो कुछ सही इंग्लिश में शब्द बोल। हो सकता है तुम लोग के भी क्या इसको ध्यान ना हो, नहीं तो ये मदद कर सकती। अच्छा होती तो फट से बोल देती। और अपसाइड डाउन शब्द हम यूज करते हैं इस क्लास की प्रोसेस, अपसाइड डाउन। ये डिक्शनरी का अपसाइड, और अपसाइड को कर दिया हमने डाउन। ये डिक्शनरी कैसे दिख रही? अपसाइड डाउन। नहीं कैसे दिख रही? नहीं कैसे दिख रही? नहीं कैसे दिख रही? नहीं कैसे दिख रही? कैसे दिख रही? कैसे दिख रही? कैसे दिख रही? नहीं नहीं कैसे? हाँ कैसे दिख रही? ये चीजें हालांकि हमारे पास एक ऐड है, अब हम तुम लोग को सीधे भेज देंगे काय को दिखाएं अभी कनेक्शन से कराने। पर आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लिखो। क्या आप व्यस्त हैं? तो हमने जानबूझ के चैप्टर का नाम कहाँ लिख रहे हैं बड़े भाई? We have to write it. So we test this. क्या? क्वेश्चन मार्क। इस क्लास में रजिस्टर बहुत आवश्यक नहीं है बेटा, इसलिए हमने तुम लोग को कुछ जबरदस्ती नहीं की। लेकिन जब चीजें हम लिखते हैं ना और अपन ने किसी से कॉपी की तो कई बार कंफ्यूजन होता है, उसमें कुछ की कुछ लिखा है स्वयं लिखने में शायद। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. पहले इनको कोशिश करें।
related to be present. It is an inverted sentence. बच्चों कभी हमने तुम्हें एक नियम बताया क्या? जब भी इन्वर्टेड सेंटेंस आएगा हम 2 सवाल आपसे एक्स्ट्रा करेंगे। नहीं बताया तो आज सीखो। अब हम वो 2 सवाल इनसे करने जा रहे हैं, हर बार करेंगे। आपने कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड सेंटेंस? तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। अभी हम सारे सवाल जवाब आयुष से कर रहे हैं क्योंकि उसने इस वाक्य को बनाने की हिम्मत दिखाई। उसके बाद उन्होंने हाथ उठाए, तो तुम उठा लेना। हालांकि हाथ नहीं उठ पाएंगे, हम तो फिर से प्रश्न पूछेंगे और जो जवाब देगा, जो इस क्लास में स्पोकन को समझता है कि भैया दिस इज स्पोकन क्लास, दिस इज नॉट मूक बधिर क्लास। चलो अब हम दूसरे से पूछेंगे, who has to make this sentence? I have to make this sentence. Firstly, I have this chapter, this sentence related to be present. अब तुमसे गलती हो, अब चूंकि 3-4 कैंडिडेट हैं तो हम इसको दे देते हैं। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? यह वाक्य मुझे बनाना है। मुझे। आई का मतलब हो गया मुझे। This sentence is related to be present. It is an inverted sentence. ये देखो फिलोसफी निकाल। पहले इसने करें बराबर हो गया। दोस्त कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस? बेटा अभी डोंट वरी, वो भी बनाने को तैयार, वो भी बैठने बनाना है। हम पास कर देंगे। इसमें कर्ता के पहले क्या और इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम है सब्जेक्ट के पीछे, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट के आगे वाले सब्जेक्ट के आगे रख देना। इस क्लास में डोंट फील लेट डाउन तो नहीं, तुमने इतना सारा बोला ना सेंटेंस बनाना। जैसे सुनिएगा, इस क्लास में एक वाक्य बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, कभी नहीं रहेगा। उस बहाने आपके मुझसे जो इंग्लिश निकल रही है उनको मारो, अब हम उसको मौका देते हैं। अभी आएंगे ना घूम के। Who has to make this sentence? I have to make this. Go ahead. This sentence is related to be chapter. चलो, who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related from be present. चलो अब तो मैं आपने हाथ उठाए नहीं। चलो who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an inverted sentence. कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसमें कर्ता जो कर्ता के बाद वाला शब्द है वो कर्ता के पहले आ गया है। चलो ठीक है, थैंक यू प्रभु। कट हो जाएगा मैडम, कट कर देंगे। इसमें पहली बार हुआ, वो जो दूसरा था ना ट्रैक, उसकी आवाज खराब हो गई थी, ये निकल के यहाँ तो डेंजरस था, उसको यूज करके नहीं आ इसमें कर्ता के पहले क्या लगा और देखते हैं किसको। चलो तुम्हारी बारी आ गई। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. अच्छा एक चीज ध्यान देना सब लोग, सेंटेंस नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में कर रहे हैं बता रहे सर बार-बार पूछ रहे, तो बार-बार जवाब दे रहे, तो उतना इंग्लिश तुम भी बोल रहे हम भी बोल रहे, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये आप पढ़ा नहीं। this sentence is related to be present. It is an affirmative sentence.
नहीं तुम्हारी किसकी? चलो तुम्हारी। Who has to make this sentence? बाकी किसको बनाना है? ये बात मुझे मानना है। हम हिंदी मालूम बेटा क्या पूछते हैं विशेष दीदी के लिए और इनके लिए। This sentence is related to the present. Firstly, it is an inverted sentence. दो सवाल, कैसे पहचाना कि ये inverted sentence? ऐसे पहचाना कि इन्वर्टेड सेंटेंस है कि क्या आया है उसमें। बस इतना सा बोलना था यार, तुम लोग ज्यादा बता रहे हो। और एक चीज और, इस बहाने तुम लोग टीचर की जगह पे अपने आप को रख के कभी देखते नहीं, लेकिन हम टीचर हैं तो तुम लोग क्या करते हो, कुछ क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो तुम लोग इतना सारा लिख के आते हो, सोचते हो कि टीचर इम्प्रेस होगा, और टीचर जब उसको देखता है मानो वो क्या सोचता है, अच्छा ज्यादा सियाने बन रहे हैं, हमने पूछा इतना सा तुम इतना बता रहे हैं, ले ये होती है टीचर की मानसिकता। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को टीचर की जगह रख के देखा करो, जब भी आंसर उतना ही लिखो जितना जरूरी है। तुम ज्यादा चमकाने के चक्कर में पेज भरोगे तो बोलेगा अच्छा बेटा नहीं। तो इसमें शुरू में क्या लगा है ये इसकी पहचान की इन्वर्टेड है। दूसरा सवाल बेटा, इन्वर्टेड बनाने का नियम बताइए जो झा सर ने सिखाया, ना कि दादा। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का तरीका, सब्जेक्ट के आगे वाले सब्जेक्ट के पीछे वाले सब्जेक्ट के आगे वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के आगे रखना है। आप सुधार दो यार, तुम्हें खुद ही जवाब मिल गया। बस इतना कि मैं पूरा खेल है, हम तो बदे रहे होंगे, आप तो उधर से तीन उठ रहे हैं, लेकिन जान दे चलो उसको देख दो। Who has to make this sentence? या वाक्य किसको बनाना? ये वाक्य मुझे बनाना। This sentence is related to be present. Be present. Be present. Be present. This is an inverted sentence. So it is an inverted sentence. कैसे पहचाना इन्वर्टेड? क्या हेल्पिंग वर्ब है? अभी तुमने तो राम सीता भाई बहन राम सीता कौन भाई बहन सब मिलो दिया। Who has to make this? I have to make this. इतनी देर में ये हाथ उठा रहे थे लेकिन जवाब नहीं दे रहे, अभी इन्होंने दिया है तो तुम लोग को तो दो तीन ठैया मौका मिल गए, एक ठैया उनको भी दे देते हैं। Go ahead. I have to make this sentence. Go ahead. This sentence को बनाओ। ठीक है, I have to make this. हमने हिंदी आपसे पूछे ही नहीं है, उसको छोड़ दो। This sentence belong to be present. Okay, this sentence बेटा मुंह हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जैसे उसको मौका मिला नहीं। Who has to make this sentence? I have to make the sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Sorry. It is an inverted sentence. कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड? क्योंकि यहाँ पहले लग रहा है। बस रुक जाओ, आगे बढ़े और खतरा इन्वर्टेड बनाने का नियम बता। इन्वर्टेड बनाने सब्जेक्ट के बाद वाला शब्द उठा के सब्जेक्ट के आगे रखना। बाद और पहले याद रखो ना, या पीछे और आगे याद रखो। बात कैसे एक तो पीछे आगे आगे वाला पहले रखना। पटेल साहब देखिए बच्चे एंजॉय कितना कर रहे हैं। तो ये इस क्लास की मेन चीज, ये उतना नहीं कर रही है
वो भी नहीं कर रही है क्योंकि वो दबाव में है अभी से। तो बस एंजॉय करें आप, और एंजॉय करने से जल्दी बने। यस Firstly, we have to take. Sorry. चलो अब तुम लोग की बारी है। Sorry, sir. Who has to make this I sentence? have to take this sentence. This sentence is related to be present. It is an inverted sentence. कैसे पहचाना है? बात की शुरुआत क्या से हुई है? सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रखें। Go ahead. At first, I will take the main verb. अरे हम उनको शब्द लिखवाई देते ना तो तुम लोग यूज कर लेना। या तो ये बहुत अच्छा है। इन सब का होना होता है। थोड़ा सा हमके टाली से सब बोलने में अच्छा लगता है। First of all, I will take the main verb, and the main verb is are. हाँ, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? Subject. चलो ले लिया आ रहा है कोई बात नहीं। Thereafter, I will. चलो गुड। thereafter अगले जुबान पे थैंक यू। Thereafter, I will take the subject. सब्जेक्ट And the subject is you. हाँ, अब यू के साथ क्योंकि आ रहा है तो यू के पीछे से उठ गया। Lastly, I will take. Lastly, I will take the adjective or the noun and the adjective और and the adjective or the noun is busy. and what is this? B-U-S-Y. अब इसको बजी नहीं बोलते हैं, बिजी बोलते। उच्चारण स्पेलिंग तो बजी है, यू से आ बनता है ना, या बुजी भी नहीं बोलते हैं, है ना? बुजी ऐसे नहीं, बिजी बोलते। चलो बोलो भारत माता की जय। पूछना उससे, चलो हम पूछ लेते हैं आपसे। आज बिजी? Yes, I'm busy. क्या प्रश्न है? I'm busy. Are you busy? Yeah, of course, I'm busy. इसमें 3 क्वेश्चन करवाने थे लेकिन टाइम हो गया। क्या आप व्यस्त हैं? Not busy. Yes. Excuse me. Are you busy? Yes, I am busy. Yeah, yes. I'm busy. Are you busy? Yes, I'm busy. क्या आप व्यस्त हैं? हाँ मैं व्यस्त। Are you busy? Yes, of course, I am busy. I am very, very busy. क्या आप व्यस्त हैं? हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। Are you busy? No, I am not. क्या आप व्यस्त हैं? नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ। Are you busy? No, I'm not busy. क्या व्यस्त हैं? नहीं, मैं व्यस्त हूँ। बेटा आंसर देने के बाद तुम जैसे हमारी तरफ देखते हो ना, मत देखा करो, उससे तो कॉन्फिडेंस कम होने का संकेत है। क्योंकि इस क्लास में हम डिक्लेयर नहीं करते ना, क्लास ही डिक्लेयर कर देती। जरा सा गड़बड़ी होगी ये जोर से चिल्लाएंगे सॉरी। बाकी क्लास में क्या होता था, टीचर डिसाइड करता था कि तुम्हारा सही है कि गलत। इस क्लास में जनता जनार्दन, जनार्दन ये नहीं समझते हो बेटा, भगवान। तो अपने देश में जनता जनार्दन होती, वही भगवान। हाँ बेटा मामा से। Yes, good. Are you busy? Yes, of course I am. क्या आप व्यस्त हैं? हाँ, मैं व्यस्त हूँ। Are you busy? Yes, I am busy. क्या आप व्यस्त हैं? हाँ, मैं व्यस्त हूँ। Are you busy? No, I'm free. क्या आप व्यस्त हैं? नहीं, मैं free. Should we conclude the class? God bless.